وینزویلا میں ہولناک زلزلے سے تباہی، 32 افراد ہلاک، 700 سے زائد زخمی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کرنے کا خدشہ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 7.5 اور 7.1 شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے۔ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، بڑی تعداد میں لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ وینزویلا کی عبوری صدر نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی، بین الاقوامی ہوائی اڈہ بند۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وینزویلا کو ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ جاپان اور کولمبیا میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، سونامی الرٹ جاری۔ وینزویلا میں زلزلے کے جھٹکوں نے بیس بال میچ کے دوران اسٹیڈیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کے باعث اسٹیڈیم میں افراتفری پھیل گئی۔ دارالحکومت کراکس میں جاری میچ روک دیا گیا، کھلاڑی میدان چھوڑ گئے، تماشائی خوف و ہراس میں اپنی نشستیں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر نے کہا وینزویلا کے عوام اس سانحے کا بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا اس مشکل اور کٹھن وقت میں تمام متاثرہ افراد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اموات پر متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ یہ ایک وفاقی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں۔ بلاول بھٹو کے وزیر دفاع پر نشانے، کہا راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ کہنے والے وزیر اب تک کابینہ میں کیوں ہیں؟ خواجہ آصف کا بیان آزاد کشمیر میں لگی آگ کو بھڑکانے کی مترادف ہے۔ وفاقی وزیر معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وزیر اعظم وزراء کو کنٹرول کرے۔ وزیر اعظم ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن چند وزراء مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، حکومت کو سیاسی راستہ نکالنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو ثالثی کا موقع دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بلاول بھٹو کی تنقید کا خیر مقدم کرتا ہوں، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں، پارٹی کہے گی تو خاموش ہو جاؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان بات کرنا چاہتے ہیں تو میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ وہ لوگ آزادی کو نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے قربانیاں نہیں دی۔ ہم نے کشمیر کے لیے 5 جنگیں لڑی اور ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں جو قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، کاروباری برادری اور عوام کو بھرپور ریلیف دیا۔ معاشی ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ملک کے ہر شہری تک پہنچائے جائیں گے۔ معاشی ٹیم سے گفتگو میں کہا حکومت نے محدود مالی وسائل کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ کراچی شارع فیصل پر بوندا باندی کے بعد گاڑیاں اور موٹر سائیکل حادثے کا شکار، ایک گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گئی، موٹر سائیکلیں سلپ ہونے سے متعدد افراد معمولی زخمی۔ اسلام آباد میں بھی بارش سے موسم خوشگوار۔ وزارت اطلاعات پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت نے راستوں کی بندش سے متعلق BBC اردو کی رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ کہا کسی گمنام ذریعے کے بیان کو تصدیق کے بغیر خبر بنانے سے ایک مخصوص بیانیے کی تشکیل کا تاثر ابھرتا ہے۔ رپورٹ میں کوئی ویڈیو ثبوت، آزاد گواہی یا سرکاری بیان شامل ہی نہیں۔ آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش اور گاڑیوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹوں سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ زمینی حقائق کے مطابق شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، کور ممبر فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل، کہا عوامی حقوق اور آٹے بجلی کی قیمتوں سے شروع ہونے والی تحریک کا رخ موڑ دیا گیا۔ کالعدم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ریاست اور اداروں کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی باتیں آزاد کشمیر کے عوام کا موقف ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تمام معاملات کو باہمی مذاکرات اور بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔
मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से मजालिस और जुलूसों का अहतमाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रफ़क़ा की अज़ीम कुर्बानियों को सलाम। पेशावर और लाहौर में मरकज़ी जुलूस पर आमद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी सख्त। कराची में निश्तर पार्क और जुलूस के रूट के इतराफ मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कोयटा में भी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पेशावर में 2 रोज़ के लिए BRT सर्विस बंद। शहरों में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज। लाहौर में शब-ए-ज़ुलजना का मरकज़ी जुलूस पांडो स्ट्रीट से बरामद। जुलूस अपने रवायती और मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। नूरी बिल्डिंग के मकाम पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा ईरान मुआहदे की पासदारी करे वरना सदर ट्रंप पाबंदियां दोबारा लगा सकते हैं। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ हमेशा खुली रहनी चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमीर कुवैत से मुलाकात के बाद कहा किसी को बैनुल अक़वामी समंदरी रास्तों पर टोल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ईरान ने बताया आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं है। ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी। रकम का कुछ हिस्सा हमारे कंट्रोल में है। रकम अपने किसानों को मकई, गंदम, सोयाबीन की खरीदारी के लिए जारी करेंगे। ईरान में खुराक की शदीद ज़रूरत है। हम उनके लिए खुराक अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का नेटो चीफ से मुलाकात में ईरान जंग के दौरान नेटो के किरदार पर मायूसी का इजहार। कहा जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन ने भी मायूस किया। ईरानी स्कूल पर हमले से मुतालिक कहा मैंने रिपोर्ट अभी नहीं देखी। बहुत कम इम्कान है कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा अमेरिका जंग के खात्मे से मुतालिक मफ़ाहमती यादाश्त के वाज़ेह मतन के बरअक्स तशरीह से गुरेज करे। अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मफ़ाहमती यादाश्त के बारे में अमेरिका के मुतज़ाद बयान ईरानी अवाम के अमेरिका पर अदम एतमाद को कम करने में मददगार नहीं होंगे। ईरानी जौहरी तनसीबात के मुआयने से मुतालिक भी IAEA और ईरान में इख्तिलाफात। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे के सरबराह राफाइल ग्रोसी ने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना ज़रूर होगा। जापान में मीडिया से गुफ्तगू में राफाइल ग्रोसी ने कहा ईरानी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक्स पर पोस्ट में कहा जौहरी तनसीबात और मवाद तक रसाई का मामला सिर्फ अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे के तहत तय किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को कोई फीस, इजाफी चार्जेस या इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहा पाकिस्तान को दुनिया में पीस मेकर के नाम से पुकारा जा रहा है। खित्ते में अमन कायम करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कई मराहिल पर मायूसी का सामना करना पड़ा लेकिन वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में पायदार अमन के लिए मिलकर काम करने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। वांग यी ने पाकिस्तान को कामयाब सालिसी और इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद दी। कहा चीन अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। टेली कम्युनिकेशन तरमीमी बिल की बात शिकों में वजाहत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। कहा निजी जायदाद के इस्तेमाल के लिए मालिक की रजामंदी बुनियादी शर्त होगी। मालिक की मर्जी के बगैर ज़मीन या इमारत तक रसाई का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लाइसेंस याफ्ता इदारे और हाउसिंग सोसाइटी में तनाज़े का फैसला हुकूमत 45 दिन में करेगी। हुकूमती फैसले से मुतासरा शख्स को टेली कम्युनिकेशन अपील ट्रिब्यूनल से रुजू का हक हासिल होगा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा अच्छे कामों में हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा जो बच्चे और बुजुर्ग जेलों में हैं उन्हें पार्लिमानी करारदाद या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाए।
खलिए में बास बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुलकर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का ताल्लुक है, मेरी मौलाना से जो बातें हुई वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मेरे साथ जो भी बातें आपने की हैं वो सरेआम बयान कर दें। वज़ीर आज़म मौलाना की बात पर मुस्कुराए, जवाब में कहा, अगर मुलाकातों की बातें बाहर करूंगा तो बात दूर तक चली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तानी कौम आज़ाद कश्मीर के अमन व अमान और सलामती के लिए फ़िक्रमंद है, मसालहती किरदार अदा करने के लिए हामी भरी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को आगे बढ़ाएंगे। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के हवाले कर रखी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इस्तेहकाक है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी कॉल का मकसद इंतखाबात को रुकवाना है। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। मामला जलाओ घिराव से नहीं, आईन और कानून के दायरे में हल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करेंगे। राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रावलाकोट के अवाम से मुआफ़ी मांग ली। कहा, ख्वाजा आसिफ का बयान इंतहाई गलत था। रावलाकोट के अवाम को कश्मीरी ना मानना कश्मीरियों की तौहीन है। मसले का हल बातचीत में है, गलती किसी की भी हो उसे मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा की जानिब से नामुनासिब अल्फाज काबिल कबूल नहीं। वो हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम? बिलावल भुट्टो का MQM को हुकूमत छोड़ने का मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म और हुकूमत आपको लॉलीपॉप पर चला रहे हैं। आप लॉलीपॉप पर नहीं चलना चाहते तो वफाकी हुकूमत से निकले। किसी भी आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन कराएं। तरामीम आज लेकर आएं। लाहौर और इस्लामाबाद के मेयर को इख्तियार दें। MQM का लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, कराची अर्बन पैकेज के साथ आईनी इस्लाहात भी नागुज़िर हैं। आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो कराची को विफाक के हवाले करने की बातें होती रहेगी। हमें कौमी मसालिहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स चोरी पर 5 साल कैद और वाजिबुल अदा रकम के बराबर जुर्माना होगा। कारोबार रजिस्टर्ड न कराने पर 4 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कारोबारी लेन देन बैंक के जरिए न करने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना आयद। खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर। क्रिप्टो और डिजिटल असासों पर पहली मरतबा 5% टैक्स आयद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई। PTI कारकुन और असम्बली स्टाफ में तल्ख कलामी। PTI कारकुन असम्बली स्टाफ को धमकियां देते रहे। दीर मोटरवे 4 साल बाद भी नहीं बन पाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा बजट में 63 अरब रुपए के मंसूबे के लिए सिर्फ 1000 रुपए मुख्तस किए। बजट दस्तावेज के मुताबिक दीर मोटरवे के लिए अब तक मुकम्मल जमीन नहीं खरीदी जा सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से अब तक 51,000 से ज्यादा आज़मीन ने हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ली। 41,000 आज़मीन ने सरकारी स्कीम का इंतखाब किया। सबसे ज्यादा पंजाब से 24,000 आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन कराई। वज़ीर आज़म की हज 2026 के इंतजामात की तारीफ। कहा, इंतजामात को आलमी सतह पर सराहा जाना कौम के लिए बाइस फख्र है।
رخصتی نہ ہونے کے باوجود خاتون حق مہر کی حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا، کہا حق مہر کی ادائیگی کا وقت مقرر نہ ہو تو اسے فوری واجب الادا سمجھا جائے گا۔ خلا کی صورت میں خاتون کو حق مہر کا 25% حصہ شوہر کو واپس کرنا ہوگا۔ شہریت ثابت کرنے کی ذمہ داری دعویٰ کرنے والے شخص پر عائد ہوتی ہے۔ دعوے داروں کو اپنے والد اور دادا کی پاکستانی شہریت کے شواہد بھی پیش کرنا ہوں گے۔ شہری کا شناختی کارڈ بحال کرنے کے فیصلے کے خلاف نادرا کی اپیل منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے شناختی کارڈ بحال کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، کہا برتھ سرٹیفکیٹ، پرانا شناختی کارڈ، پاسپورٹ ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، صرف شناختی کارڈ کا اجرا پاکستانی شہریت کا ناقابل تردید ثبوت نہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں فروری کی سطح پر آ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔